So today's session is based on chart patterns. Okay, you all can see my screen, right? Just confirm me on the chat box. You can confirm. Okay, thank you for confirmation. So before starting, I would like to know how many of you are, attending it for the first time, and for how many of you it's repeat. Okay, it's a repeat session, so that accordingly I can take the session. फर्स्ट टाइम ओके मेनली मनीष जी फर्स्ट टाइम दिलीप जी रिपीट है ओके फर्स्ट टाइम रिपीट सेशन फॉर शिव जी ओके फर्स्ट टाइम मोहम्मद जी फर्स्ट टाइम श्रीकांत जी फर्स्ट टाइम रिपीट ओके केवी जी फॉर रिपीट okay, so I can see most of the people are for the first time, and there are some participants who are repeating the session. Okay, so let's start the session. Kindly explain new patterns to. Yeah, I'll start. I'll try to cover the patterns which I have not covered in the last session, so that those who are repeating the session, they can understand some new pattern also. Okay, but basic I have to repeat, because those who are attending it for the first time, so they for them I have to repeat some basic understanding of the chart patterns, and then I'll go to the patterns. Okay. So let's start. So basically chart patterns, first I'll explain you what are the types of chart patterns, then individually I'll take patterns, and we'll try to find out how which patterns work in which market, okay, and how to find targets and where to put stop losses using the chart patterns. Okay, so before starting the before going more into chart patterns, first the basic understanding, what is what are charts. So chart is simply a is a graphical representation. Okay, it's a graphical representation of price. So whatever has happened in the market, okay, the charts can be of intraday, daily, monthly, weekly, yearly, whatever time frame it could be. So whatever has happened during that time period, that will be reflected in the chart. So what is the high the stock has made, what is the low, where the stock opened, where the stock has closed. So everything will be reflected by chart. So even if you are not in the market, if you have not seen the market for 2-3 months or 4-5 days, whatever time frame, if you open the chart, then by going through the chart, you will understand what has happened when you have not when you have not seen the market. So you can by giving a visual look, you will able to understand what has happened. ठीक है? ओके, हिंदी में बोलिए प्लीज. ठीक है, मैं हिंदी में बोलता हूँ. हाउ टू ड्रॉ चार्ट्स. ओके, drawing charts is something different, and reading chart is different. Drawing is the first part, and reading and analyzing and interpreting chart is a different part. ठीक है, ड्राइंग एक अलग पार्ट है दिलीप जी, और उसको कैसे रीड करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. ठीक है, तो पहला मैंने जैसे पहले भी मैंने बता चुका हूं कि चार्ट पैटर्न जो है आपके दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक होता है रिवर्सल पैटर्न, एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न. ठीक है, तो व्हाट इज अ रिवर्सल पैटर्न. रिवर्सल पैटर्न आपका बनता है कोई डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में. इफ द मार्केट इज ट्रेंडिंग अप, तो वहां पे क्या बनेगा आपका बेयरिश रिवर्सल, ऊपर से नीचे जब घूमता है, या डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न व्हेन मार्केट इज रिवर्सिंग डाउन से अप. ठीक है, दैट इज बुलिश रिवर्सल. नीचे से जब ऊपर जाता है तो उसको अपने बोलते हैं बुलिश रिवर्सल. ठीक है, तो उसी तरह से अलग अलग मार्केट में अलग अलग पैटर्न्स को अलग अलग नाम दिया गया हुआ है. ठीक है, तो वही पैटर्न्स अपने अब डिस्कस करेंगे. तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है मैं अभी नहीं करूंगा. लास्ट मैं ऑलरेडी आई थिंक आई हैव डिस्कस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न. तो इससे कोई वो नहीं है कि अगर क्योंकि हर पैटर्न अलग है, तो कहीं से भी अपने स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी न्यू फॉर एवरीवन. ओके, सो आई विल टेक, मैं ये वाला पैटर्न ले लेता हूं, मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स. अपने स्टॉकेज में, स्टॉकेज ऐप में एक पैटर्न है जिसमें अपने मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स के नाम से है. ठीक है, जिसमें आपका आता है डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम. ठीक है, और डबल टॉप एंड डबल ट्रिपल टॉप. ठीक है, तो डबल बॉटम क्या है. डबल बॉटम इज अ बुलिश पैटर्न. ठीक है, डबल बॉटम इज अ बुलिश पैटर्न, एंड इट इज अ रिवर्सल पैटर्न, एंड इट इज अ
रिवर्सल पैटर्न, ठीक है. एंड डबल टॉप ऑल्सो इट्स अ रिवर्सल पैटर्न विच इज अ बियरिश पैटर्न. डबल टॉप आपका हाई की तरफ में बनता है और डबल बॉटम आपका लो के साइड में बनता है, ठीक है. तो पहले आपने देखते हैं डबल टॉप क्यों बनता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है डबल डबल बॉटम बनने में, इसके अपने टारगेट कैसे निकाल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं ये बनता क्यों है. तो डबल बॉटम बनता है क्योंकि एक स्टॉक, सपोज मैं आप लोग को स्क्रीन में दिख ही रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे एक स्टॉक लेने की कोशिश की थी, ठीक है. ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर से नीचे से ऊपर गया, ठीक है, बट मैं यहाँ पे बाय नहीं कर पाया. आई हैव मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग, राइट. तो सेकेंड टाइम जब वापस इस प्राइस पे आता है तो लोग जो यहाँ पे मैं जब खरीदना चाहता था, जो लोग यहाँ पे खरीदना चाहते थे नहीं खरीद पाए थे, वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, राइट. एंड दे विल गिव सपोर्ट टू द प्राइस. वहां पे एक डिमांड आ जाएगी. पीपल जो लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके थे, वापस दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, सो दे विल इनिशिएट द बाय पोजीशन या जो स्टॉक को सपोर्ट देंगे, ठीक है. एंड स्टॉक को एक बाउंस बैक मिलेगा. तो वहां पे बनता है आपका डबल बॉटम, बॉटम वन एंड बॉटम टू. तो डबल बॉटम आपका क्या बनता है, डाउन ट्रेंड, कोई डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में जब स्टॉक फॉल कर रहा होता है, ठीक है, वहां पे आपका डबल बॉटम बनता है. तो फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज द सेकंड बॉटम जब स्टॉक फॉल कर रहा था, ठीक है. ये वो आपका सेकंड बॉटम, ठीक है, फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. व्हाट इज द आइडियल पीरियड ऑफ एनालिसिस, बताओ. आई डिस्कस ऑल दिस मनीष जी, ठीक है. पहले थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, देन विल मूव टू अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. सो यहाँ पे भी आपका बॉटम वन, यहाँ से स्टॉक में एक रैली आई थी, अगेन इट हैज कम टू द सेम पॉइंट. तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स जिन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस की थी, दे बिकम एक्टिव हियर, और वहां पे वो आए और डिमांड क्रिएट हो गई एंड स्टॉक स्टार्टेड मूविंग अप, राइट. सो दिस इज द सेकेंड बॉटम फॉर्मेशन. नाउ स्टॉकेज में आपको जब बॉटम बनाने के बाद जब फर्स्ट बाउंस बैक देना चालू करेगा, यू विल गेट एन अलर्ट कि इसने आपका डबल बॉटम बनाया है, इस स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है, राइट. अब ये डबल बॉटम वाला स्टॉक जो है, दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट. बट व्हाई इट इज फेवरेट, दैट आल्सो आई विल टेल. बिकॉज यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड, ठीक है. रिस्क आपका यहाँ बहुत कम है. वेयर यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस, जस्ट ये बॉटम जो बने हैं आपके, दो बॉटम बने हैं, जो लोएस्ट बॉटम है उसके आधा 1% नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड द ट्रेड, ओके. तो स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल, जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ दिस, यू नो, दो बॉटम जो है उनके लो के नीचे आप आधा परसेंट 1% का फिल्टर लगा के यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस. दैट इज द फर्स्ट, ओके. और ये तो हो गया स्टॉप लॉस. अब सबसे बड़ा बात, इसका टारगेट कैसे निकालेंगे, हाउ यू विल फाइंड द टारगेट. सो इन दिस पैटर्न देयर आर टू टारगेट्स, टू वेज एंड टू टाइप्स ऑफ टारगेट. दो टारगेट आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है. पहला टारगेट क्या होगा, ये बॉटम आप जो देख रहे हैं, ये बॉटम से लेके ये जो हाई है यहां तक का डिस्टेंस, राइट. तो यहां से लेके अगर आपने यहां बाय किया है तो दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट, ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है. सो ये जो बना आपका टॉप, दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट, राइट. तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा. मेरा सेकंड टारगेट क्या होगा, व्हाट विल बी माय सेकंड टारगेट. ये डिफरेंस जो है, ये हाई और ये बॉटम के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है. सपोज ये आपका 5600 का है, जस्ट मैं इसमें एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ. सपोज दिस हाई इज 5600, ओके, एंड दिस लो इज 5200, ओके. सो द डिफरेंस इज 400 पॉइंट्स, ठीक है. तो ये 400 पॉइंट्स को मैं अगर इसके ऊपर ऐड करूंगा, 56 प्लस 4 दैट इज 6000. तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा. तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, फर्स्ट टारगेट आपका अगर यहां से आप बाय करना चालू करते हैं तो दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट, जहां पे आप अपना 50% पोजीशन बुक कर सकते हैं, राइट. या फिर आप अपने स्टॉप को एट कॉस्ट लाके ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है. सेकेंड टारगेट क्या होगा मेरा, जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ये हाई और ये लो का जो डिस्टेंस है, उसको मैं इस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ऐड करूंगा, दैट विल बी माय सेकेंड टारगेट. वो मेरा सेकेंड टारगेट हो जाएगा, ठीक है. टाइम पीरियड टू अचीव द टारगेट, दिलीप जी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि कितने दिन में होगा, बट जनरली वी एक्सपेक्ट कि 1 से 3 महीने के अंदर, 1 से 3 महीने के अंदर
टारगेट अचीव हो जाना चाहिए. दैट इज अ जनरल एक्सपेक्टेशन. ओके, दैट टारगेट में अचीव विद इन 1 to 3 months. ओके, कभी 1 महीने से भी पहले हो सकता है, कभी 3 महीने के भी अंदर हो सकता है, कभी इट मे टेक लॉन्गर टाइम ऑल्सो, बट जनरली 1 से 3 महीने के अंदर टारगेट अचीव हो जाना चाहिए. काइंडली एक्सप्लेन सेकंड टारगेट. ओके, सेकंड टारगेट मैंने कहा ये जो डिफरेंस है दिस हाई. ओके, कैन यू सी ऑल, यू ऑल कैन सी द टॉप, ये जो हाई है, ठीक है, ये हाई और ये जो लो बना है, ये जो लो बना है, ये हाई और ये जो लो लो बना है, ठीक है, ये हाई और ये जो लो बना है, इसका डिफरेंस लेंगे. सपोज ये 5600 है जो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया. Okay, I'll explain in English. Somebody want me to explain in English, so I'll repeat the target in English. I've already repeated in Hindi. So okay, I know language problem. Some want me to speak in English, some Hindi. ये हमेशा ये problem रहती है, but no problem. I'll try to solve. जिसके भी जो queries है, जिनको English में चाहिए, मैं repeat कर दे रहा हूँ उनके लिए. Okay, I'm repeating it. So let's go on. Yeah. So we'll take the difference between the top, this high and this low. The difference between this high, suppose this high is 5600. I'm just taking it for the example. This high is 5600. Okay, and this low is 5200. Okay, so 56 minus 52, that is 400 points. So difference is of 400 points. Okay, now I will add this 400 points to this 5600. So 5600 plus 400, that is 6000. So 6000 will be my target. I'll take the difference. To find the second target, you have to take the difference between the high and the bottom, this bottom. Okay, high and bottom, high of this point and bottom of this point. Okay, we'll take the high and bottom of this point and add above this top to get the target. So 5600 is the top, so I'll add 400 points, that is 6000 will be my target. Hope it is clear for all now. Second target. Okay, so in this case also you can see, again I'm taking one more example for further clarity. So this is the bottom, this is the, these are two bottom. So my first target will be here, this area. Okay, this area, like you can see there is one high here also, this high, this, there is also one high. So this area you can consider as a target point. Okay, this area. Okay, so that will be the first. And what will be the second target? We'll calculate the difference between this high and this low. We'll calculate the difference between this high and this low and add up above this to get the second target. Okay, so this is how you can find the second target. Okay, and stop loss, what could be the stop loss? Generally patterns don't give stop losses. Okay, so you can keep stop loss as per your risk capacity, but still what I suggest, where you can keep a stop loss, because this is a double bottom formation pattern, so you can keep a stop loss just below the bottom, the lowest bottom. If suppose this bottom is between these two bottom, the lowest bottom. Okay, below that you can give a filter of 0.5% or 1%. Okay, and you can place your stop loss below this. Okay, very, it must be clear. How do we set target and stop loss in Grow app? That is a different topic, Maniji. In Grow app, you have to go and check the app. App में बता पाएंगे, ठीक है? Hope double bottom is clear for everyone. Then I'll move to triple bottom. It is same only. Okay, clear है? Any doubts in double bottom? If you have any doubt, please raise your concern. Okay. अभी मैं स्टॉक, थोड़ी देर बाद मैं अभी ये कंप्लीट कराने के बाद अभी मैं स्टॉकेज ऐप में भी आप लोग को लेके जाऊंगा. सो वहां पे अपने लाइव डिस्कस कर लेंगे, राइट? व्हाट विल बी द टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम इज डेली टाइम फ्रेम. द पैटर्न अभी के लिए, सी पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड इन एनी टाइम फ्रेम. इट कैन बी डेली, वीकली, मंथली, इंटरडे, बट एज ऑफ नाउ इन स्टॉकेज ऐप इट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम. ओके, so double bottom आप लोग ने देखा. Now I'll take you to the triple bottom. Triple bottom is same as double bottom. Okay, but it has more, you know, more what we can say, more powerful than double bottom. Why it is more powerful than double bottom? Because it is testing its low for the third time. So first time it tested its level here,
second time it tested, third time it tested, and again it is moving back. So this is forming a big support level. So this support level is very strong support level, because 3 times the stock has tested its support and giving a bounce back. So triple bottom is stronger than double bottom. Okay, but other way, if it does not work, then the opposite side also goes in the more powerfully, it will go down. Opposite also very true. It will be very strong side down if your stop loss is triggered. So downside will also be, good fall may be expected if it breaks this support level. Okay, so you have to be very strict with your stop losses. Okay, in double bottom and triple bottom stocks, mainly in triple bottom, because 3 times after testing 3 times its support level, the stock is giving a big bounce back. But if it does not give a bounce back, and if it fails after giving some movement, it fails, then the downside will also be very sharp. So take your stop losses and exit with a small loss if it goes below this line. Okay, very clear. So now that I'm coming to the target. Here also, as you can find your target 2 ways. So your first target will start from if you have bought here. Okay, your first target will be this top. Okay, you'll buy first target will be here. Okay, and now what will be the second target? Second target will be again the same. You will calculate the distance between this high and this low. ठीक है, तो ये हाई और ये लो के बीच में आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, राइट. सपोज यहाँ का हाई है 1500 रुपए, ओके, और यहाँ का लो है 1200 रुपए. 1500 is the high and 1200 is the low. So what is the difference? 300 points, right? So 300, I'll add up this 300 points to 1500 पे. 1500 पे ऐड करूंगा 300 को, क्या हो जाएगा टारगेट मेरा? 1800 का टारगेट हो जाएगा. ओके, स्टॉप लॉस, एक मिनट, स्टॉप लॉस कैसे होगा ट्रिपल बॉटम? केशव जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सो शुड वी कंसिडर द डबल बॉटम फेल्ड? डबल बॉटम फेल्ड कब होगा? डबल बॉटम फेल्ड होगा अगर इसके नीचे जाएगा. यहाँ पे तो फर्स्ट बॉटम बना, सेकंड बॉटम, यहाँ पे आप डबल बॉटम में काम करेंगे, राइट. अगर यहाँ से बाउंस बैक किया देन इट इज अ डबल बॉटम. अगेन बाउंस बैक करने के बाद आपका ये वापस नीचे आ गया, देन इट इज अ ट्रिपल बॉटम. ओके, ट्रिपल बॉटम. बट इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल, so it will be a failure of triple bottom. But if it breaks here, then it's a failure of double bottom, right? क्लियर है? ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, क्लियर है? दीज आर बुलिश रिवर्सल. तो ये क्या होंगे आपके किस कैटेगरी में आएंगे? बुलिश रिवर्सल पैटर्न में आएंगे. रिवर्सल पैटर्न जनरली आपका डाउनसाइड से जब ऊपर जाता है तब बनता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल पैटर्न. और कंटिन्यूएशन पैटर्न तब बनता है जब आपका मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही होती है, देन इट स्टार्ट ट्रेडिंग इन अ रेंज, कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज, देन अगेन स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो एक रेंज, एक अपसाइड में चल रहा है स्टॉक, फिर एक रेंज बना के रहता है थोड़े टाइम तक, फिर वापस से अपनी चाल चालू कर देता है, वो जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न. ठीक है, तो डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम क्या है आपके? रिवर्सल पैटर्न है. ओके, क्लियर है? अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूं. तो ये डबल बॉटम स्टॉक कब खेलना चाहिए आपको? ठीक है, और अभी जैसे कि बुलिश मार्केट में ये डबल, कोई भी स्ट्रैटेजी आप अगर करते हैं, बुलिश मार्केट में गो फॉर अ बुलिश स्ट्रैटेजी एंड बेयरिश मार्केट में गो फॉर अ बेयरिश स्ट्रैटेजी. नाउ हाउ, अब आपका क्वेश्चन होगा हाउ आई विल अंडरस्टैंड वेदर द मार्केट इज बुलिश और बेयरिश. ओके, सो द आंसर इज विथ यू ओनली. अभी का करंट मार्केट क्या है, बुलिश है या बेयरिश है? एनी आंसर्स? एनी आंसर्स? अभी मार्केट इज व्हाट, बुलिश और बेयरिश? ओवरऑल मार्केट बुलिश. ओके, बुलिश, बुलिश, सपन जी बुलिश, मिथुन जी बुलिश, के वी पटेल जी बुलिश, बुलिश. तो सभी लोग बता रहे हैं कि बुलिश है. तो ये अपने को समझ में आ जाता है कि देख के ही समझ में आ जाएगा कि बुलिश है कि बेयरिश है. अब हालांकि इसमें इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं. ठीक है, जनरली मार्केट को बुलिश कब कहा जाता है? अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है. अनिल जी बोल रहे हैं ओवरबॉट है. ओवरबॉट का क्या डेफिनेशन है? ठीक है, जब निफ्टी जब 7000 पे था कोविड के टाइम में, 7000 से डबल हो गया 15000,
तब भी अपने को ओवरबॉट लगता था। 15,000 से 21,000 हो गया तब भी अपने को ओवरबॉट लगेगा। 21 से 25 हो गया तब भी ओवरबॉट लगेगा। तो ओवरबॉट का कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली। मार्केट में ये सब टर्म्स यूज होते हैं, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ठीक है, बट कोई नहीं जानता कि कब ओवरबॉट है, ठीक है, और ओवरसोल्ड है। कोई स्टॉक्स 5,000 से ₹5 भी आ जाता है, राइट। वो 5,000 से जब 500 आएगा तो अपने को लगेगा क्या, ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है। वो 500 से 50 आएगा तब भी हम लोग बोलेंगे वो ओवरसोल्ड है। और वो 500 से 50 से ₹5 आ जाएगा तब भी ओवरसोल्ड रहेगा, राइट। तो देर इज नो फिक्स डेफिनेशन, ठीक है। मार्केट्स में ये सब वर्ड यूज होते हैं तो हम लोग इस वर्ड से थोड़ा भावुक हो जाते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है, बट एक्चुअली कोई बोल नहीं सकता कि 500 ओवरसोल्ड है या 5,000 5,000 ओवरबॉट है या 5 लाख ओवरबॉट है, वी डोंट नो। ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू यू नो जस्टिफाई कि मार्केट इज ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। बहुत सी चीजों को आपको मार्केट का पूरा इकोनॉमिक कंडीशन, जीडीपी, बहुत से फंडामेंटल फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स लेके आपको उसका एनालिसिस करके पता चलना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट आरएसआई अगर 70 के ऊपर है, इससे अपने नहीं बोल सकते दैट मार्केट इज ओवरबॉट। ओके, देखिए मैं जो बोल रहा था मनीष जी ने वही कर दिया। कैन आरएसआई टेल ओवरबॉट मार्केट? आरएसआई कैन नॉट टेल यू ओवरबॉट मार्केट। आप, आरएसआई क्या बोलता है, 70 के ऊपर अगर मार्केट है तो ओवरबॉट है। आप जितने भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, आप उनको देख लीजिए, वो कितने समय तक ओवरसोल्ड, ओवरबॉट रेंज में रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, राइट। तो ये ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड का लॉजिक आपका तब काम करेगा व्हेन अ स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ रेंज। एक रेंज बाउंड पैटर्न में अगर मार्केट काम कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, तो 70 पे गया, 70 75 पे गया, ओवरसोल्ड हो गया, वहां बेच दो। 30 35 पे आया, ओवरबॉट हो गया, बाय कर लिया, ठीक है। सो दैट विल वर्क इन द रेंज बाउंड मार्केट, बट इन ट्रेंडिंग मार्केट द स्टॉक में रिमेन इन ओवरबॉट ओवरबॉट जोन फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। वी डोंट नो, बहुत लंबे समय के लिए रह सकता है, एंड इट कैन रिमेन इन ओवरसोल्ड पीरियड फॉर बहुत लंबे समय के लिए ओवरसोल्ड पीरियड में भी रह सकता है। सो आरएसआई का मीनिंग ही है, इज अ स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। मैं भी जब नया नया मार्केट में था तो मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था कि 70 पे आया तो बेच दो, अगर 70 पे बेच दो और 30 पे खरीद लो। अगर इतना ही इजी मार्केट होता तो एवरीबॉडी वुड हैव बीन अ मिलीनियर, राइट। इट इज नॉट दैट इजी। सो जनरल अपने क्या है, मार्केट को अभी देख के ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट बुलिश है। फिर बहुत से फैक्टर्स आप और भी ले सकते हैं मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिफाइन करने के लिए। सपोज आप 20 डे मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसे डिफाइन करेंगे? अगर स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या हो जाएगा, उसका डाउन हो जाएगा, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो क्या होगा, मीडियम टर्म ट्रेंड उसका डाउन हो जाएगा। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तो उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन हो जाएगा, राइट। तो अपने मार्केट्स में ट्रेंड के अंदर ट्रेंड बनते हैं। एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। मार्केट्स में करेक्शन आते हैं, ठीक है। मार्केट्स में, मार्केट ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ऊपर चला जाएगा, मार्केट्स में करेक्शन आएंगे, बट दैट करेक्शंस आर नॉट ट्रेंड चेंज। मैं पहले भी वेबिनार्स में बता चुका हूं अपने कि दैट ट्रेंड चेंज इज अ वेरी बिग फैक्टर, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बिग थिंग है, राइट। ट्रेंड चेंज इज अ वेरी बिग थिंग। corrections will happen in the market, and that corrections will be the opportunity. In a bullish market, corrections are opportunity to buy, and in a bearish market, any pullback, कुछ ऊपर का बाउंस बैक आता है, that is an opportunity to sell, right? तो इसीलिए आप लोग ने मार्केट में अक्सर देखा होगा, न्यूज में आता था ना, बाय ऑन डिप्स, या एनालिस्ट अपने देते हैं बाय ऑन डिप्स इज रिकमेंडेड। तो वाई बाय ऑन डिप्स, स्टॉक इज बुलिश बट थोड़ा ऊपर है तो करेक्शन थोड़ा आ सकता है, बिकॉज ओवर स्ट्रेच हो चुका है तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो इसलिए डिप्स में आप खरीदिए, नहीं तो आप ड्रॉडाउन में फंस सकते हैं। तो ये लॉजिक होती है। ऐसे ही मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अनिल जी, आई एम नॉट मैम, सर आप बोल सकते हैं। इज गोइंग अप बट पोर्टफोलियो स्टिल रेड, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रीतिश जी, सॉरी नॉट अनिल जी, प्रीतिश जी, ये स्टॉक्स देखिए क्या होता है, स्टॉक्स में सेक्टर चर्निंग होती है। एक्चुअली डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, चार्ट पैटर्न से ये डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, बट स्टिल क्योंकि ये बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ
एक निफ्टी होता है, ठीक है, जो लार्ज कैप इंडेक्स होता है जिसमें 50 स्टॉक्स हैं, और सेंसेक्स है जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं। और एक ब्रॉडर मार्केट होता है, ठीक है, जैसे निफ्टी 500 या मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मार्केट में क्या होता है, सेक्टर चल, तो अभी अगर निफ्टी अप है, राइट, निफ्टी आप अप देख रहे हैं, बट आपका कोई और स्मॉल कैप डाउन है, छोटे कंपनीज या मिड कैप डाउन है, और आपका स्टॉक्स अगर उन्हीं मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिया है, तो आपको लगेगा कि निफ्टी तो अप है बट स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स अगर डाउन है, ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो रेड में है और मार्केट अप में है। ये एक रीजन हो सकता है, राइट। दूसरा हो सकता है, इंडेक्स इंडेक्स का क्या होता है, रीबैलेंसिंग होता रहता है, मतलब सेक्टर रोटेशन होता रहता है। सपोज आज आईटी चल रहा है, ठीक है, तो आईटी के स्टॉक्स ने निफ्टी को ऊपर करके रखा हुआ है, आईटी ने बहुत अच्छा किया, बट आपका स्टॉक जो है वो बैंकिंग में है, राइट। तो निफ्टी का स्टॉक है बट आपका स्टॉक बैंकिंग में जो नेगेटिव में है, बट निफ्टी अप क्यों है, बिकॉज ऑफ आईटी। एक एक सेक्टर या दो सेक्टर की वजह से निफ्टी को सपोर्ट मिला हुआ है, बाकी आपका तो बाकी स्टॉक्स डाउन है, तो इसलिए आपका पोर्टफोलियो डाउन है। तो दो चीज होती है, तो मैं आपको बताऊं, आइदर सेक्टर सेक्टर की वजह से आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, दूसरा होता है ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स लार्ज कैप में बाइंग है बट स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग है। तो दीज आर द रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से होता है। और दूसरा है कि स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स में जनरल ऐसा नहीं कि सब स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो आपके जितने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लिए तो वो भी बढ़ेगा, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर मेरे स्टॉक्स में कोई न्यूज नहीं है, कोई फंडामेंटल फैक्टर नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, तो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। या फिर उसमें कोई बैड न्यूज है, स्टॉक मार्केट ऊपर है, तो मेरा स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो देयर आर मेनी रीजंस फॉर सो स्टॉक फॉर ओवरऑल स्टॉक मार्केट एंड एन इंडिविजुअल स्टॉक्स, राइट। होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल। I think one should look at the relatable index and not Nifty always. Yes, true, Manish ji. Please continue chart pattern stock है जहाँ भी I'll continue. Distract हो जाता हूँ मैं भी. Okay. So clear है. Double bottom and triple bottom is clear. I hope. Okay. Now double bottom and triple bottom. Now इसका उल्टा है double top and triple top. Double top and triple top. ये थ्योरी पार्ट है, ये आप लोग पीपीटी में देख पाएंगे, ठीक है। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आई विल एक्सप्लेन यू। अच्छा, जो मैं बोलना चाह रहा था आप लोग को डबल बॉटम में, तो बियरिश मार्केट में डोंट प्ले बुलिश स्ट्रेटजीज, एंड इन बुलिश मार्केट डोंट गो फॉर बियरिश स्टॉक्स, ओके। ठीक है, सो द डबल टॉप इज व्हाट इज अ रिवर्सल पैटर्न। ये कब बनता है आपका, ये रिवर्सल पैटर्न है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड रिवर्सल, अप से डाउन जब होता है तो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम, डबल टॉप, ठीक है। एक टॉप वन टॉप टू, यू कैन सी टॉप वन टॉप टू, ठीक है। सो दीज आर टॉप, ये है टॉप वन टॉप टू, यहाँ पे भी टॉप वन टॉप टू। तो इनकी भी वही साइकोलॉजी है। अगर यहाँ पे स्टॉक्स ने जो बढ़ा था, फिर वहां से सेलिंग आई, जो लोग ने यहाँ पे बेच नहीं पाए थे, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टॉक खरीदा था, राइट, मैंने यहाँ कहीं पे स्टॉक खरीदा, फिर यहाँ तक मैं वेट करता रहा, सेलिंग आई, मैं सोचा और ऊपर जाएगा, बट स्टॉक ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, तो मैं ऑलमोस्ट अपने कॉस्ट के पास आया, तो मैं क्या किया, होल्ड किया। बट वापस मुझे जब सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे हाई के पास आया, तो मैं क्या किया, फट से बेच के निकल गया, राइट। तो दैट साइकोलॉजी इज दैट दोज हु डिड नॉट could not exit at this point, okay, when they get the second opportunity at this time to exit, they are exiting. तो वो क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जब देखा भाई मैं तो यहाँ निकल नहीं पाया, प्राइस नीचे चला गया था, यहाँ पे प्राइस 500 था, अभी ये 450 हो गया, ठीक है, तो मैं निकल नहीं पाया। तो वापस जब 500 आया तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि अभी फिर से यहाँ से गिर जाएगा, इससे अच्छा मैं प्रॉफिट बुक कर लूं। तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई आने लगती है। जो लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस किए थे प्रॉफिट बुक करने का, वो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे फ्रेश सेलर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, फ्रेश सेलर्स भी आ जाते हैं, सीइंग द रेजिस्टेंस लेवल, सो प्रॉफिट बुकिंग एज वेल एज fresh sellers come up and the stock lose momentum and stock starts going down, okay। इसका भी टारगेट कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हमने डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम में निकाला था, वैसे ही इसमें निकालेंगे।
बट इसमें क्या करेंगे अपने उल्टा, इसमें डाउनसाइड टारगेट होता है तो वी विल सब्ट्रैक्ट इट, वी विल सब्ट्रैक्ट द टारगेट. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो पॉइंट. तो ये आपका फर्स्ट टारगेट है, सपोर्ट जोन. तो यहां से लेके यहां तक ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये आपका सपोर्ट लेवल बना, राइट. तो ये फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे होगा, डाउन साइड टारगेट. सेकेंड टारगेट क्या होगा, मैं ये हाई और ये लो का डिफरेंस लूंगा. आई कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दिस हाई एंड दिस लो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू गेट द सेकेंड टारगेट. लो मैं सेकेंड टारगेट यहाँ पे लूंगा. क्लियर हो गया. तो फर्स्ट टारगेट यहां से लेके ये लेवल तक का, दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट. सेकेंड टारगेट ये हाई और ये लो. Okay, this high and this low, I'll find the difference between this high and this low and subtract from this point to get the second target. Hope it is clear. So this is also another example. So first target in this case, this will be the first target because ये आपका first यहाँ पे यहीं fall था. So this will be your first target. और second target कैसे निकालेंगे, इस high और इस low का difference निकाल के इस point से subtract करेंगे to get the second target. Okay, so this is double top. ओके, तो वैसे ही अपना क्या है, ट्रिपल टॉप बनता है. टॉप वन, टॉप टू एंड टॉप थ्री. ठीक है, क्लियर है. तो इसका भी टारगेट, फर्स्ट टारगेट अपना ये जोन हो जाएगा. दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट, दिस सपोर्ट जोन. एंड सेकेंड टारगेट कैसे निकालेंगे, विल टेक द डिफरेंस बिटवीन दिस हाई एंड दिस लो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू गेट द लो. ठीक है, ठीक है. तो ये मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम समझ गए. हाँ, एक चीज मैं और बोलना भूल गया कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे. तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे. जैसे बॉटम में क्या करते हैं, अपने नीचे लगाते थे स्टॉप लॉस, जस्ट रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल के. यहाँ पे जस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर आप आधा 1% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके ऊपर. ठीक है, क्लियर है. तो मैं अब एक बार स्क्रीन शेयर चेंज करूंगा. ठीक है, सो दैट आई कैन टेक यू टू द स्टॉकेज का ऐप में लेके जाते हैं, वहां पे अपने डबल टॉप और बॉटम एक बार स्टडी करते हैं, राइट. सो आई एम चेंजिंग द स्क्रीन. या, तो मेरा स्क्रीन चेंज हो गया. सबको स्क्रीन चेंज दिख रहा है, स्टॉकेज का ऐप दिख रहा है. कोई भी कंफर्म करने प्लीज. यस, ओके, जुबिन जी कंफर्म. ओके ओके, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू हजारी जी. ओके, ठीक है. तो स्टॉकेज ऐप दिख रहा है, राइट. तो यहाँ पे यू कैन सी अंडर प्रो एनालिटिक्स चार्ट पैटर्न्स है यहाँ पे, राइट. ठीक है, तो अंडर प्रो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स में अपने यहाँ पे आ गए मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स, राइट. यहाँ पे आप देखिए एक रिसेंट का टैब है, एक पास्ट का टैब है. रिसेंट मींस जो अभी हाल फिलहाल स्टॉक्स आए हैं इसमें और जो एक्टिव है. और पास्ट मींस जो आके इसमें से निकल चुके हैं, आइदर इनका टारगेट अचीव हो चुका है या एक टाइम को पास कर चुके हैं, काफी लंबे समय तक थे. ठीक है, ना टारगेट अचीव हुआ ना स्टॉप लॉस अचीव हुआ, तो ये क्या हुआ, वो पास्ट में चले जाते हैं. ठीक है, वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिक लगा हुआ है जिससे ये रिसेंट से पास्ट में चले जाते हैं. ठीक है, तो आपको काम किसमें करना है, रिसेंट स्टॉक्स में, राइट. तो यहाँ पे देखिए डबल बॉटम ग्रीन में दिया हुआ है. ग्रीन मींस बुलिश, रेड मींस बियरिश. तो डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम क्या है, बुलिश पैटर्न है इसलिए आपको ग्रीन में है, और डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप बियरिश पैटर्न इसलिए रेड में है. ठीक है, तो एक एक पैटर्न खोल के अपने डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक में 27 सितंबर को 103 रुपए के ऊपर आया है, किसने डबल बॉटम बनाया है. ठीक है, एक बार ओपन करते हैं. तो यहाँ पे बॉटम वन, बॉटम टू. तो एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस चार्ट पैटर्न. मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, तो क्या अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा. प्लीज कैलकुलेट एंड राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. टारगेट,
एनी आंसर्स? ठीक है, अपने अपने आंसर्स दे दीजिए। तो फर्स्ट टारगेट आया है, सबका आ गया है, ठीक है। कल रिपीट बता देता हूँ किसका क्या है। विप्लव जी का आंसर आया है 135, अनिल जी का भी 135, सपन जी 142, कटारिया जी 127, टारगेट 26 पॉइंट्स, ओके। सस्वत जी 26 पॉइंट्स, ओके। रोहित जी 127, के बी पाटिल जी 132, सुनील जी 127, गोपीनाथ इट go down, so I have no target. नो टारगेट। गोपीनाथ जी क्यों आपका टारगेट नहीं है? टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इट गो डाउन, सो आई हैव नो टारगेट। 135 फर्स्ट टारगेट, 130 सेकंड टारगेट 148। विशाल को शुड वी लुक एट द डबल बॉटम और बुलिश मार्केट और बेयरिश मार्केट, बताऊं शुड वी लुक फॉर डबल, ठीक है। ओके, सो टारगेट जनरली क्या आ रहे हैं अराउंड में 125 से लेके 135 140 के टारगेट्स आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप टारगेट क्या ले सकते हैं? फर्स्ट टारगेट मेरा ये हाई क्या है 129 के आसपास, 129 या ये पॉइंट क्या है, तो 129 से 130 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, राइट। 129 से लेके 130, ठीक है। तो एक बार मैं राउंड फिगर पकड़ ले, 130 का मेरा इसका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट क्या होगा? इन दोनों के बीच में मेरा पॉइंट का डिफरेंस कितना है? 26 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो 130 प्लस 26 अराउंड 156 विल बी माय सेकंड टारगेट, ठीक है। वो जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो मेरा सेकंड टारगेट होगा 156, ठीक है। ओके, परेश जी का 127 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है 148, वेरी क्लोज। तो 127 125 से लेके फर्स्ट टारगेट अपने 125 से लेके 130 के आसपास में रख सकते हैं, ठीक है। कभी भी टारगेट एक पॉइंट नहीं होता है, एक जोन होता है, वो जोन के पास में अपने कहीं भी ऊपर नीचे निकल सकते हैं, राइट। एक कोई ऐसा पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि वहीं तक स्टॉक टारगेट अचीव करेगा और हिट करके गिर जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। तो एक जोन होता है, तो इसमें अपने 125 से लेके 130 का जोन जोन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने जोन कैसे बनाएंगे? यहाँ का ये वाला जैसे है 107, यहाँ का क्लोजिंग देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से लेके और ये टॉप का पॉइंट है, तो ये वाला जो है 130, ठीक है। तो अपने 127 से लेके 130 का जोन बन रहा है, ठीक है। तो वहां पे अपने टारगेट फर्स्ट टारगेट बुक कर सकते हैं। और सेकंड टारगेट तो जस्ट अपने डिफरेंस निकाला है, जो 25-26 पॉइंट का आ रहा है उसको अपने ऐड कर देंगे, इसके 130 के ऊपर ऐड कर देंगे टू गेट द सेकंड टारगेट, राइट। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अभी डबल बॉटम बनाया है, तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखेंगे अपने, तो अपने देखेंगे ये जो लो है, ये लो है आपका 104 का, 104 रुपए 20 पैसे का। और यहाँ पे जो इसने लो बनाया है 103 रुपए 62 पैसे का, तो मैं 103 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। 103 102 मतलब 103 के नीचे आप स्टॉप लॉस कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? स्टॉप लॉस क्लियर हो गया? हाउ आई कैलकुलेटेड सेकंड टारगेट, आई हैव टेकन द डिफरेंस, ये हाई और ये लो का जो डिफरेंस है कटारिया जी, ये है 26 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, राइट। ये हाई 26 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे 130 से लेके 103 पॉइंट, तो 26-27 पॉइंट का अपना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को अपने यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर यहाँ से ऐड करेंगे 26 पॉइंट का डिफरेंस को आप 127 से ऐड कर सकते हैं, 130 से ऐड कर सकते हैं, तो 130 प्लस 26 इज 156, ठीक है। क्लियर है कटारिया जी? तो ये जो डिफरेंस है ये हाई और लो का, उसको मैंने ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड किया है, ठीक है। आप इस पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हैं, एक्चुअल में ब्रेकआउट यहाँ पे होगा 130 के बाद में होगा, क्योंकि ये दोनों आसपास के रेजिस्टेंस है, तो आई कंसिडर ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट, दैट इज 130, ठीक है। क्लियर हुआ पंजाब नेशनल बैंक? पैसे स्टेप बाय स्टेप लगाना है, पैसे आप कैसे आप स्टार्ट कीजिए यहाँ पे स्टार्ट बाय करना, दैट पैसे कैसे लगाएंगे? इट्स इन अ डाउनवर्ड चैनल। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस का यही प्रॉब्लम है, कहीं आपको वो डाउनवर्ड दिख रहा है तो कहीं पे सपोर्ट दिख रहा है। ये स्टॉक मुझे ट्रेंडिंग डाउन दिख रहा है, बट यहाँ पे मुझे डबल बॉटम भी दिख रहा है, राइट। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है।
अगर बुलिश मार्केट में गो फॉर बुलिश स्ट्रेटेजी, जैसे मैं कहा अभी मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट बुलिश है, स्टॉक आपको ये बुलिश पैटर्न, कोई स्टॉक डिप में मिल रहा है नीचे, वहां पे नीचे से घूमने का अपॉर्चुनिटी उसमें मिल रही है, तो उसमें बाय करना है। तो इसमें अपने बाय, अभी हम क्या सेल साइड में जाना चाहेंगे, अगर इसमें डाउनवर्ड, इस स्टॉक में अगर दो चीज मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा वॉइस तो अनम्यूट ही है, वॉइस आ रहा है ना सबको? अभिषेक जी को मेरा वॉइस नहीं जा रहा है? सबको वॉइस आ रहा है ना? प्लीज जस्ट कंफर्म वंस, एनीबडी? यस, ओके। अभिषेक जी, माय वॉइस इज ओके, मतलब सबको जा रहा है? प्लीज, आई थिंक सिस्टम में आप एक बार चेक कर लीजिए अपने। ओके, सो मैं जो बोल रहा था कि अभी का बुलिश मार्केट में आप सेल तो नहीं करना चाहिए, आई विल नॉट रिकमेंड सेल अभी बुलिश मार्केट में, क्योंकि अगर कोई स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है तो वहां पे वो सपोर्ट लेके वहां से बाउंस बैक आ सकता है। बुलिश मार्केट में नॉट सेल, ओनली बाय। बेयरिश मार्केट में यू सेल, नो प्रॉब्लम। ओके, सो एज पर, तो इसमें अब देखिए, हम लोग जब स्ट्रैटेजी में काम करना है तो डाउट्स को हटा देना होगा। आइदर यू प्ले ऑन स्ट्रैटेजी और प्ले ऑन योर अजम्पशन कि मुझे ऐसा लग रहा है। अगर जो स्ट्रैटेजी में काम करेंगे वो सिर्फ स्ट्रैटेजी में काम करेंगे, वो सेकंड थॉट नहीं देंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। अगर ऐसे हम लोग सोचते रहेंगे तो वहां पे इनएक्शन हो जाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू। इसीलिए स्ट्रैटेजीज बनी होती है ताकि अपने इनएक्शन नहीं काम कर पाए। अगर स्ट्रैटेजी में मेरे बाय आया है तो मैं बाय करूंगा। अब वो बाय दो चीज हो सकता है, आइदर मेरा वहां पे टारगेट अचीव होगा या मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो वो मैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड टू गेट द टारगेट एज वेल एज स्टॉप लॉस। मैं सोचूंगा मैं सब में टारगेट ही अचीव कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सम ट्रेड विल गो रॉन्ग, इट्स ओके विद द मार्केट, नो प्रॉब्लम। आप जितने भी बड़े रिसर्च कर लें, जितने भी बड़े मतलब ट्रेडर हो जाए, एनालिस्ट हो जाए, या मैं भी कुछ भी जितना भी कर लूं, ऐसा नहीं होगा कि मेरे सारे स्टॉक्स टारगेट ही हिट करेंगे और स्टॉप लॉस किसी का हिट नहीं होगा, इट इज नॉट दैट, राइट। सो यहाँ पे अगर मेरी स्ट्रैटेजी में बाय आया तो मैं बाय करूंगा और सिंपली मैं स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाऊंगा, ठीक है। आइदर अगर वो यहाँ पे नीचे चला गया तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर जाऊंगा, और या अगर मैं टारगेट के आसपास आया तो मैं टारगेट अचीव करके प्रॉफिट बुक कर लूंगा, राइट। तो यही दो चीजें हो सकती हैं। ओके, so ideally the stock PNB should show up bullish reversal strategy, स्ट्रैटेजी में आना चाहिए। अगर बुलिश रिवर्सल के जो क्राइटेरिया है अगर उसमें मैच कर जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, आपका आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है, जब जो जो पॉइंट्स दिया गया है जब जब वो मैच करेगा तभी वो आएगा स्कैनर में, अगर नहीं मैच करेगा तो नहीं आ पाएगा। तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो इसमें भी वही है, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। सो ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपना जी मीडिया में आया था 25 सितंबर को 125 रुपए में जी इंटरटेनमेंट आया था। ये देखिए, बॉटम वन, बॉटम टू, यहाँ पे आया, द स्टॉक हैज गिवन अ शार्प अप मूव। तो मेरा रिस्क कितना छोटा है, सिर्फ इसके नीचे मुझे स्टॉप लॉस रखना है, और मेरा टारगेट, आई कैन, मेरा टारगेट जोन क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके ये पॉइंट तक का मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और अगर मुझे सेकेंड टारगेट कैलकुलेट करना है तो मैं ये हाई और ये लो का डिफरेंस निकालूंगा, और उसको ब्रेकआउट जब होगा इसके ऊपर तो ऐड कर दूंगा टू गेट द सेकेंड टारगेट, राइट। ठीक है, बट द ट्रेंड इज डाउन साइड, सो हैव यू डिटरमाइन डबल बॉटम? ट्रेंड इज डाउन साइड, तो बॉटम आपको नीचे ही मिलेगा, दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न। ओके श्रीवास्तव जी, डबल बॉटम इज अ रिवर्सल पैटर्न, तो ये आपको डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा था कि पैटर्न जो बनते हैं, आइदर इट इज अ रिवर्सल पैटर्न और इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको अप ट्रेंड में मिलेंगे जो बुलिश कंटिन्यूएशन होंगे, और जो बेयरिश कंटिन्यूएशन होंगे वो डाउन ट्रेंड में मिलेंगे, ठीक है। और जो रिवर्सल पैटर्न होंगे वो आपको डाउन ट्रेंड से जब रिवर्स करना चालू करेगा तभी मिलेंगे, ठीक है। तो ये जी इंटरटेनमेंट या जो भी डबल बॉटम है, इट्स अ रिवर्सल पैटर्न, सॉरी, इट्स अ रिवर्सल पैटर्न, तो ये आपको डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा, द स्टॉक का ट्रेंड जब डाउन हो गई, ठीक है। तो एक होता है स्टॉक का ट्रेंड और एक होता है आपका
मार्केट का ट्रेंड। तो स्टॉक का ट्रेंड डाउन है, बट यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, देखिए सपोर्ट ले लिया है और मार्केट बुलिश है, तो आई विल लुक टू बाय। मैं यहाँ पे रिवर्सल खेलने का कोशिश करूंगा। बट अब मैं इसको उल्टा करता हूँ। अगर सेम सिनेरियो, अगर ये मार्केट आपको अगर डाउन ट्रेंड में, अगर स्टॉक मार्केट डाउन होता, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन होता, राइट, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन होता और आपको अभी यहाँ पे डबल बॉटम मिल रहा होता, तो क्या आप बाय करते इस समय? एनी आंसर्स? नो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में अगर आप ये खेलेंगे तो दिस पैटर्न विल मे नॉट वर्क फॉर यू। अप ट्रेंड में अगर आप ये खेलेंगे, दिस पैटर्न में वर्क फॉर यू, राइट। अब इसी का उल्टा, अगर अभी आप डबल टॉप या ट्रिपल टॉप का पैटर्न खेलेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश है, तो चांसेस है आप सेल करेंगे, वो वहां का टॉप का ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, राइट। तो अभी अपने आप डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम देख चुके हैं, बॉटम मैंने दिखा दिया, एक बार डबल टॉप देख लेता हूँ, ठीक है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में डबल टॉप बना था 27 सितंबर को, ठीक है। ओबराय रियल्टी में भी बना है 27 सितंबर को, ये देखिए। तो टॉप वन, टॉप टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉप बन गया, यहाँ पे कंफर्म हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? सेल बन रहा है, राइट। तो क्या मैं अभी सेल करूंगा? अब मुझे दो ऑप्शन मिल रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टी सेल करने का और पीएनबी बाय करने का, राइट। तो मुझे अगर दोनों में से एक में काम करना है तो मैं किस में काम करूंगा? एनी आंसर्स? पीएनबी, प्रतीश जी पीएनबी, पीएनबी, अनिल कुमार जी सेल पीएनबी, पीएनबी। सो I think you have already answered. The participants are already you have answered. And why PNB? आप ये भी बता पाएंगे. Godrej is at overheated market. See? तो Godrej overheated market है, तो maybe this is just a correction in Godrej properties, right? It is just a normal correction. और वापस ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बाय है। कल निफ्टी अगर ऊपर चला गया, ठीक है, रेट कट टू कम। प्रीतिश जी, ये एक रेट कट एक न्यूज या फंडामेंटल पार्ट हो जाएगा, तो अभी सिर्फ टेक्निकल बेस पे अगर बात करूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी इज गोइंग अप, दैट्स व्हाई पीएनबी, ओके, आई टेक दिस मनीष जी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। पीएनबी स्टॉक्स जो काफी दिन पहले अभी अच्छा चल रहे थे, अब करेक्शन के बाद वापस ऊपर चलना चालू किए, राइट। तो आई विल गो फॉर दिस, I will not go for a sell in Godrej Properties because the overall market is up. Godrej Properties only strong only. स्टॉक में कुछ खराबी तो नहीं हुई है, बस 2 दिन की सेलिंग हुई है, तो ये नॉर्मल करेक्शन भी तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके वापस बढ़ जाए, राइट। तो हम यहाँ पे सेल अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं आप सेल नहीं कर सकते, यू कैन सेल इट, बट यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको सेल करते भी हैं तो हम क्या करेंगे, अपना छोटा सा स्टॉप लॉस 3400 जो है, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो पैटर्न्स के साथ साथ आपको और भी चीजें देखना है कि उसमें मार्केट साथ साथ क्या है, ओवरऑल मार्केट क्या है, सेक्टर क्या है, राइट। तो ये गोदरेज, ओबराय रियल्टी में भी सेम, दोनों आपका प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट बिजनेस, तो दे आर। तो ये स्टॉक में कोई वीकनेस नहीं हुई है, अभी क्या है, डबल टॉप बना दिया है, टॉप वन टॉप टू, ठीक है। तो अगर आप सेल करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड, रिस्क तो बहुत कम है, सिर्फ इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख के, जो बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है दे कैन सेल इट, ओके। बट मुझे अगर दो में से एक काम करना है, सेल या बाय, तो मैं पीएनबी बाय करूंगा, इसको सेल नहीं करूंगा, राइट। बट हाँ, अगर यही बियरिश मार्केट कंडीशन होता तो मैं पीएनबी बाय नहीं करता, मैं उसको गोदरेज प्रॉपर्टीज को मैं सेल करता, ठीक है। सो डबल टॉप सेम वे, सेम वर्क्स इन ट्रिपल टॉप ऑल्सो, बट ट्रिपल टॉप में अभी रिसेंट में कोई स्टॉक है नहीं, पास्ट में है। रेडिको खैतान कोई पूछ रहा था, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। 27 अगस्त को आया था। तो ये देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, ट्रिपल टॉप बना था इसमें,
टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, बट यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा करेक्शन देने के बाद वापस से स्टॉक ऊपर चला गया, ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने, ठीक है। तो बिकॉज मार्केट कंडीशन, ओवरऑल स्टॉक अप, मार्केट कंडीशन इज बुलिश, तो स्टॉक में सेलिंग नहीं आई, वापस उसने ब्रेकआउट दे दिया। स्टॉक सिलेक्शन को सेक्टर रोटेशन कैसे कंबाइन करें एंड वो कितने टाइम फ्रेम तक कंसिडर करना चाहिए। स्टॉक को सेक्टर रोटेशन के ऊपर आपका थर्सडे सेशन होता है सेक्टर रोटेशन के ऊपर, सो यू कैन अटेंड दैट सेशन ऑन सेक्टर रोटेशन, ठीक है। तो सेक्टर्स की भी चर्निंग होती रहती है, हर टाइम एक साथ सब सेक्टर्स नहीं चलते हैं, कभी शुगर चल रहा है, कभी बैंक चल रहा है, कभी आपका आईटी चल रहा है, राइट, कभी रियल स्टेट चल रहा है, तो वो सेक्टर आपको सेक्टर रोटेशन में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर मेरा सेक्टर भी अगर बाय में है, ठीक है, और स्टॉक भी मुझे बुलिश स्ट्रैटेजी में बाय दे रहा है, और इंडेक्स भी, निफ्टी इंडेक्स भी बाय में है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ बाय। अगर मेरे को ओवरऑल मार्केट बाय है, सेक्टर भी बाय है, बट चार्ट पैटर्न मुझे कोई बेयरिश पैटर्न दे रहा है, आई विल नॉट सेल दैट पैटर्न, ठीक है, वो मैं सेल नहीं करूंगा, ठीक है। तो रैडिको खैतान का मैं एक बार थोड़ा सा, किसी ने एनालिसिस पूछा था, तो रैडिको खैतान ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगेन इट इज गिविंग करेक्शन, तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट जोन बन गया इसका, तो यहाँ से ये जो है, ये पॉइंट जो है, दिस 1900, ये जो पॉइंट है अपना 1900 से लेके ये जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ तक का, 18 से 1900 तक का ये अब डिमांड जोन बन गया, जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल होता है वो आपका सपोर्ट लेवल बन जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक सपोर्ट जोन बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो वापस से प्राइस इसके नीचे अब जाना नहीं चाहिए, अगर इफ यू आर बाइंग एट दिस पॉइंट देन यू हैव टू मेंटेन द स्टॉप लॉस बिलो दिस, ठीक है। So hope this multiple bottom and top is clear with everybody. ठीक है, किसी का भी कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे एक बार बता दी, बिकॉज आई वांट एवरीबडी दोज आर पार्टिसिपेटिंग, सबका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, किसी का वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, ना इधर लैंग्वेज की वजह से ऐसा ना होना चाहिए, ना ये आपका एक्सप्लेनेशन की वजह से भी नहीं होना चाहिए। मैं अगर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं तो आप मुझे प्लीज बताइए, ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन इट, ताकि सेशन का वरना मीनिंग नहीं रहेगा, अगर एक भी पार्टिसिपेंट के पास क्लैरिटी नहीं गई है तो आई विल कंसिडर दैट दिस सेशन टू बी अ फेलियर, right, so it will be my failure, so I don't want to be fail, so please tell me if anybody has any doubt, and but request is be precise with patterns only, ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स पूछेंगे तो क्या बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स करने कवर करने में पैटर्न्स कवर नहीं कर पाता हूँ फिर। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू फॉर ऑल द गुड फीडबैक्स, ओके, थैंक यू एवरीबडी। सो तो अब मैंने ये मल्टीपल टॉप्स खत्म कर दिया है, अब आई विल गो विद द ग्रुप में जो मुझे आप लोग बताइए विच पैटर्न टू चूज, जिसका ज्यादा सबसे वोटिंग होगा मैं वही पैटर्न कुछ काम करूंगा, ठीक है। सो एनीबडी प्लीज, राउंडिंग बॉटम, ओके, राउंडिंग बॉटम 2, असेंडिंग ट्राइंगल राउंडिंग बॉटम 3, हेड एंड शोल्डर 1, डबल बॉटम हो चुका है, चैनल 1, राउंडिंग 4, राउंडिंग 5, so rounding is winning the, rounding bottom is winning the, election is being rounding bottom, so majority wants me to cover rounding bottom, ठीक है, तो मैं राउंडिंग बॉटम कवर कर लेता हूं, ठीक है। सो ऑल ऑल हैप्पी विद दिस फेयर इलेक्शन, सो राउंडिंग बॉटम, so rounding bottom and rounding top, so rounding bottom is also a reversal pattern, okay, rounding bottom is also a reversal pattern, means it's a bullish reversal, means down से up reversal pattern होता है, rounding top is a bearish reversal pattern, means ऊपर से नीचे, ठीक है। तो पास्ट से रिसेंट में जाता हूँ, रिसेंट में अभी कोई भी राउंडिंग बॉटम स्टॉक नहीं है, ना राउंडिंग टॉप में भी है, ठीक है, रिसेंट में कोई स्टॉक नहीं आया है,
तो इसीलिए मुझे पास्ट का ही लेना पड़ेगा, तो आई एम टेकिंग द पास्ट वन। ठीक है, तो पास्ट का लेता हूं, राउंडिंग बॉटम पहले ले लेता हूं, बुलिश पैटर्न। टाटा इन्वेस्टमेंट, इमामी, केमप्लास्ट, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जितने भी स्टॉक्स हैं सब में आपका राउंडिंग वो बना है बॉटम। तो इमामी में देख लेते हैं, क्योंकि इमामी यहाँ पे भी बना, 30 में को भी बना, 7 में को भी बना है। तो यहाँ 7 में वाला देखते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले इमामी 7 में को बना था। ठीक है, प्राइस पॉइंट 510 रुपए पे। चलिए एक बार खोलते हैं। तो दिस इज द बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस पैटर्न डाउन ट्रेंडिंग, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता क्या है, डाउन ट्रेंड, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड हो जाता है उसके बाद द स्टॉक स्टार्ट मेकिंग हायर लो। ये जो लो होता है इस लो से हायर होता है, और ये हो जाता है आपका एक्यूमुलेशन फोर्स, एक्यूमुलेशन फेज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। स्मार्ट मनी, इंटेलिजेंट मनी, इन्फॉर्म्ड पीपल, यू नो, आर गेटिंग इनटू दिस। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इन्फॉर्म्ड पीपल जो होते हैं, जिनको रिसर्च बोल लीजिए या इनसाइडर इंफॉर्मेशन बोल लीजिए, या कंपनी मैनेजमेंट से बातचीत करके, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, या ज्यादा मार्केट का एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है आपका एक्यूमुलेशन फेज, राइट। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है यहाँ पे, और एक राउंडिंग बॉटम को अपने सॉसर पैटर्न भी बोलते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉसर पैटर्न, क्योंकि एक सॉसर का शेप देता है, राइट। तो सॉसर किसको बोलते हैं, अपने तश्तरी जो होती है, राइट, प्याली जो होती है ना, तो उसको अपने सॉसर बोलते हैं। तो उसकी तरह का एक शेप बनता है, और इसका ब्रेकआउट कहाँ होता है, ये इसकी नेकलाइन है, दिस इज कॉल्ड द नेकलाइन। तो जब ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होता है। तो राउंडिंग बॉटम आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि राउंडिंग बॉटम बना, यहाँ नहीं बोल सकते हैं, यहाँ कंफर्म कहाँ होगा, यहाँ इस कैंडल में जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, देन राउंडिंग बॉटम पैटर्न विल बी कंफर्म। ओके, तो स्टॉकेज में आपको यहाँ पे अलर्ट मिल जाएगा। ये देखिए क्या डेट है यहाँ पे, 7 मई। तो अपने ने यहाँ पे देखा था ना, 7 मई को आया था, 7 मई को। ठीक है, तो 7 मई को शाम को आपको मिल जाएगा कि इमामी ने राउंडिंग बॉटम बनाया है ना। इसका टारगेट कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टारगेट कैलकुलेट करेंगे, ये जो नेकलाइन है, ठीक है, और जो इसका बॉटम का जो डेप्थ है, ये सॉसर का जो डेप्थ है, मींस ये लो और ये हाई, इसका डिफरेंस निकालेंगे और ये ब्रेकआउट पॉइंट से ऐड करेंगे टू गेट द टारगेट, राइट। तो जैसे इसका लो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 417, 417 का लो है, और इसका हाई है 498, मतलब 500 का हाई पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अराउंड 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 580 का टारगेट बना था इसमें, 510 पे आया था, 503 पे 580 85 का टारगेट बना था यहाँ पे। ठीक है, तो उसने यहीं पे अचीव कर लिया था, और उसके बाद ओवर अचीव भी किया प्राइस को। ठीक है, तो प्राइस ऐसा नहीं है कि टारगेट अचीव हो गया तो ऊपर जा नहीं सकता, वहीं से गिर जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पे 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, टारगेट अचीव हो जाने के बाद 100% भी कर सकते हैं, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट्स के लिए मैं 3 फैक्टर्स और बताना चाहता हूं आप लोग को, जो कोई भी ब्रेकआउट्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, क्या से चांसेस है कि वो ब्रेकआउट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। ठीक है, तो ये इनवैलिड होने के बाद ही पता चलेगा कि ब्रेकआउट वैलिड है या इनवैलिड है। वो ब्रेकआउट वैलिड होने के बाद पता चलेगा इनवैलिड। अभी मैं यहाँ पे बहुत इजीली बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट वैलिड हो गया, बट मैं यहाँ पे क्या बता सकता था कि ब्रेकआउट वैलिड है या इनवैलिड होगा। बात का पिक्चर देख के बताना बहुत इजी होता है, बट अगर मैं यहाँ पे होता तो मुझे बात हो सकता बहुत सा मन में डाउट्स आता कि ये ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं है, कि वापस कहीं गिर नहीं जाए। तो ये बहुत से क्वेश्चंस आपके भी मन में आएंगे, मेरे भी मन में आएंगे, और बाकी जो और भी ट्रेडिंग करते हैं उनके मन में आएंगे, राइट। तो ब्रेकआउट वैलिड हो सकता है या नहीं, ये कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट, उसको अपने कैसे जानेंगे, राइट। तो मैं 3-4 चीज बताना चाहता हूँ जिससे आप कंसिडर कर सकते हैं कि चांसेस हायर है कि ब्रेकआउट वैलिड होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मृत्युंजय जी ने वॉल्यूम कहा, वेरी गुड। वॉल्यूम कहा, बिग बार्स कहा, वेरी गुड केशव जी ने। ओके, तो 2 पॉइंट तो मुझे यहाँ मिल ही गए। इंपल्सिव मूव किस साइड है, वॉल्यूम
कितना है, ठीक है। ठीक है, तो 2 पॉइंट ऑलरेडी मुझे मिल गए कि बिग साइज कैंडल होना चाहिए, बुलिश लॉन्ग कैंडल, एंड वॉल्यूम शुड बी गुड। तो ये दोनों तो मुझे यहाँ पे दिखे, वॉल्यूम का जंप भी मिला, कैंडल भी बिग हुई। और तीसरा है कि कैंडल का क्लोज, जो कैंडल का क्लोज है वो हाई के पास हुआ है या लो के पास हुआ या नीचे हो गया है। तो इस कैंडल में देख रहे हो ऑलमोस्ट हाई के पास में हुआ है। कंपैरेटिवली इस कैंडल में देखिएगा, यहाँ पे कैंडल का विक बहुत ज्यादा है, तो क्लोज क्या हुआ, लोअर साइड में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सेम ब्रेकआउट हुआ करता, वॉल्यूम भी होता, तो मैं इस ब्रेकआउट पे डाउट करता। वॉल्यूम है बट यहाँ पे क्लोज नीचे हो गया, लोअर विक हो गया। तो 3 कंडीशंस, वॉल्यूम शुड बी गुड, लेंथ ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल शुड बी गुड, एंड स्टॉक शुड क्लोज एट द हाई, हाई के पास में स्टॉक को क्लोज करना चाहिए, राइट। तो ऑलमोस्ट माया बिजो एट ब्रेकआउट, यस सुनील जी आई एम विथ यू। माया बिजो कैंडल अगर बनती है ब्रेकआउट के साइड में तो वेरी गुड, ठीक है। तो ये राउंडिंग बॉटम, ये आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा स्टॉकेज ऐप में जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये डाउन ट्रेंड में बनता है, इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, फिर लोगों का और पार्टिसिपेशन होने लगता है यहाँ पे और ज्यादा, जब ब्रेकआउट हो जाता है और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वॉल्यूम्स आने लगते हैं, और प्राइसेस को सपोर्ट मिलने लगता है, डिमांड आ जाती है और प्राइस स्टार्ट मूविंग अप, ठीक है। तो ये था इमामी का चार्ट। ये बालकृष्णा में भी 18 मई को बना, ये देखिए बालकृष्णा में बना था, ठीक है। तो जब इसके ऊपर क्लोज होगा 18 में, 18 ये क्या, हाँ 18 इसी दिन, तो जब भी नेक लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इस दिन क्या था, देखिए मेरा डाउट था, बाइंग सर्किट में स्टॉक आई थिंक बंद हुआ या हाई पे बंद हुआ, तो सर्किट था कि नहीं आई डोंट नो, बट हाई पे बंद हुआ, बट यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था, तो एक मेरा डाउट यहाँ पे रहेगा। तो मैं यहाँ पे शायद नेक्स्ट डे जब ये ऊपर खुला, ठीक है, इसके ऊपर खुला, तो मैं नेक्स्ट डे इसमें इंटर करने का सोच सकता हूँ, बट इस दिन मेरे पास डाउट रहेगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं था। अगर इस दिन का क्लोज का कैंडल का वेट करेंगे तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा चीज अच्छा एग्जांपल मिल गया मेरे को, जो पॉइंट नहीं आया था अभी आ गया देख के चार्ट। वो क्या होता है कि स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट भी करते हैं, जैसे कि इस केस में, तो यहाँ पे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे वापस से अपने ब्रेकआउट लेवल को आपने देखा, यहाँ पे रीटेस्ट किया, राइट। तो अगर कभी आप ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए, नहीं ले पाए, देन अगर स्टॉक रीटेस्ट करके बाउंस बैक दे रहा है, तो दैट विल बी द सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू बाय, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा टी ले रहा हूँ इन बिटवीन, बिकॉज थोड़ा मेरा गला वो है। होप यू ऑल डोंट माइंड, जस्ट टू क्लियर माई वॉइस, ओके। सो स्टॉक्स रीटेस्ट भी करते हैं, ओके, स्टॉक्स रीटेस्ट करते हैं दिस ब्रेकआउट लेवल, एंड दिस ब्रेकआउट रीटेस्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो रीटेस्ट आपको डबल कंफर्मेशन, अगर ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करके वापस से बढ़ रहा है तो एक बहुत अच्छा साइन होता है रीटेस्ट के लिए। प्रोसेस क्या होना चाहिए, गुड क्वेश्चन, ठीक है। कुछ और बताना चाहता हूँ, प्रोसेस जब भी आप ब्रेकआउट खेलें तो जिस दिन ब्रेकआउट दिया है नेक्स्ट डे अगर उस ब्रेकआउट हाई के ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर चल रहा है, देन यू कैन बाय द स्टॉक। ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर चल रहा है, देन यू कैन बाय द स्टॉक, ओके। और यू कैन बाय व्हेन द स्टॉक रीटेस्ट के बाद वापस ऊपर चलना चालू करता है, सपोर्ट लेता है, तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं। जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो सिर्फ जस्ट ब्रेकआउट के टाइम में ही बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड, जो कैंडल ब्रेकआउट हाई दी है उस कैंडल के हाई के ऊपर चले, यू स्टार्ट बाइंग, ठीक है। अगर इनकेस ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिस हो गया है तो वेट फॉर द रीटेस्ट, डोंट रन आफ्टर द स्टॉक, डोंट जंप आफ्टर द स्टॉक। अगर स्टॉक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, जंप करके मुझे हायर प्राइस में नहीं लेना है, आइदर आई वेट फॉर करेक्शन और आई लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। मार्केट खत्म होने वाला नहीं है, स्ट्रैटेजीज खत्म होने वाली नहीं है, स्टॉक्स आते रहेंगे, एक गया दूसरा जाएगा आएगा स्ट्रैटेजी में, तो जंप करके अपने को लेना नहीं है, राइट, क्योंकि अपने को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ स्टॉप लॉस क्या रखेंगे,
तो अगर कोई भी कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस बिलो द ब्रेकआउट कैंडल का लो। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, इसमें बहुत सॉलिड कैंडल नहीं बनी है, तो मैं एक एग्जांपल दूसरा का ले रहा हूँ जिससे आपका ब्रेकआउट क्लियर होगा। इमामी का ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे कुछ फिल्टर देके आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस। बट अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत छोटी है तो आपको अपना स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। और एक जनरल रूल बता दे रहा हूँ स्टॉप लॉस के लिए, रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। आप पैटर्न से टारगेट तो निकाल सकते हैं। तो सपोज आपका टारगेट 100 रुपए का आ रहा है तो आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू कीप अ स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर आपका टारगेट 100 रुपए का आ रहा है, आप स्टॉप लॉस 50 रुपए का नीचे रख दीजिए। अगर 500 का टारगेट आ रहा है तो 250 रुपए का टारगेट रख स्टॉप लॉस रख दीजिए। तो दिस वे यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस और बिलो सॉरी और बिलो द ब्रेकआउट कैंडल का लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं आसपास से, ठीक है। लॉन्ग टाइम ब्रेकआउट विल गिव गुड रिजल्ट, या लॉन्ग टाइम ब्रेकआउट विल गिव, जो बहुत दिन बाद ब्रेकआउट होता है तो उसका ब्रेकआउट बहुत तेजी से होता है और जल्दी भी उसका इम्पैक्ट आ जाता है। सर शुड वी ऐड RSI also to confirm buy or sell? Yes, Sushil ji, you can add RSI also. If stock has given a buy breakout, right, and stock is trading above its 50 or 55 or 60 RSI, you can buy the stock. Okay. बट अगर आपका बाय आ रहा है और स्टॉक्स आपका 35 चल रहा है, 40 चल रहा है RSI, देन और आपको बुलिश सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, बुलिश कोई ब्रेकआउट हुआ है, देन अवॉइड इट, ठीक है। तो 50-55 के ऊपर RSI है और आपका बुलिश ब्रेकआउट है, यू कैन बाय द स्टॉक, ठीक है। अलॉन्ग विद द चार्ट पैटर्न्स, मार्केट कंडीशन, सब कुछ और भी फैक्टर्स आपको फैक्टर इन करना पड़ेंगे। रिकॉर्डिंग मिलेगा आप लोग को, आई थिंक मंडे अपलोड हो जाएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। स्टॉकेज के ऐप में उसमें स्टॉकेज सोशल में मिलता है, हैशटैग रिकॉर्डिंग्स डालेंगे क्लब में जाके तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स। ओके अभिषेक जी, ओके। सो क्लियर है यहाँ पे इमामी राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अब मैं एक राउंडिंग टॉप करा देता हूँ। प्रीतिश जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो ये एक बार जो क्लब में नहीं है, एक बार स्टॉकेज कस्टमर सपोर्ट से बात कर लीजिएगा, वो लोग बता पाएंगे हाउ यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। यूट्यूब लिंक्स होता है तो वो लोग आपको हेल्प कर देंगे, कस्टमर सपोर्ट टीम विल हेल्प यू, ओके, इन गेटिंग द रिकॉर्डिंग, दोज हु आर नॉट इन द क्लब, ओके। तो डबल सॉरी राउंडिंग टॉप, ठीक है, राउंडिंग टॉप इट इज अ बेयरिश पैटर्न, ठीक है। ये किर्लोस्कर आया था 19 जुलाई को, ये देखिए, दिस इज अ राउंडिंग टॉप पैटर्न। तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इट हैज वेंट डाउन एंड अगेन इट इज मूविंग अप। तो वही मैं कहता हूँ कि अभी क्या मार्केट में बुलिश मार्केट है तो बेयरिश पैटर्न अपने को कम खेलना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, जब तक या बहुत कॉन्फिडेंट हो तभी करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसका भी टारगेट कैसे निकालेंगे, ये हाई और ये लो का डिफरेंस नेक लाइन से ऐड करके, इसमें देखिए टारगेट अचीव हो गया है। अगर देखेंगे तो देख के समझ में आएगा कि टारगेट अचीव हो गया है। तो ये जो नेक लाइन है और ये टॉप है, इसका डिफरेंस निकाल के अपने ये नेक लाइन से सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द टारगेट ऑफ राउंडिंग बॉटम, ओके। सचिन जी, आई थिंक है, सबको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आई थिंक। एक बार मैं श्योर नहीं हूँ, तो एक बार कस्टमर सपोर्ट से क्लियर कर लेंगे तो आई थिंक बेटर होगा, बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन इस बारे में बोलने के लिए, ठीक है। क्योंकि किसको क्या राइट से आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग। सर यू आर कमिंग ऑन विच डे? अनिल जी, मैं सैटरडे ही आता हूँ जनरली, और जनरली चार्ट पैटर्न्स पे ही लेता हूँ, ठीक है। RS55 बेस्ट बाई जोन, यस, RS55 आपको विवेक सर का जो मॉडल है, RS55 का बहुत अच्छा मॉडल है। अगर आप चार्ट पैटर्न्स के साथ इसको ऐड कर देते हैं तो होता है ना, तो पुट द चेरी ऑन द केक अपने बोलते हैं, चेरी ऑन द केक, या हिंदी में बोले तो सोने पे सुहागा,
तो वो हो जाएगा। अगर आप विवेक सर का इसमें RS मॉडल जो है, RS 55 जो है पॉजिटिव होना चाहिए, RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, सुपर ट्रेंड आप लगा सकते हैं, राइट। EMA, तो बहुत सी चीजें आप कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस भी कर लेने से क्या हो जाता है, इनएक्शन हो जाएगा। स्टॉकेज प्रो पर कोई ऑफर चल रहा है क्या? विकास जी, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस, प्लीज कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट टीम फॉर दिस। एनी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट के लिए आप कस्टमर सपोर्ट से बात कीजिए, ठीक है। और कोई भी पैटर्न्स या मतलब मार्केट रिलेटेड है, यू कैन स्पीक टू मी, यू कैन टेल मी। RS 55 available on trend view, trading view. Yeah, it is available on trading view, available है by default। I think उसमें 123 का डेज का लेता है, but you can change it to 55 days, सेटिंग जाके आप चेंज कर सकते हैं। होल्डिंग पीरियड 1 to 3 months, यस। ये अपने बोलते हैं, आपको लॉन्गर करना है कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स आपको। अगर स्टॉक्स कंटिन्यू ऊपर चलता जा रहा है, आप ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को। तो आई थिंक मोर पैटर्न्स के लिए टाइम अराउंड 7:30 हो गया है, तो आई एंड द, मतलब यहीं पे खत्म करता हूँ पैटर्न। अदरवाइज इट विल बी ओवरडोज फॉर द पार्टिसिपेंट एज वेल एज फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। तो ओवरडोज हो जाएगा। तो ट्राई टू मास्टर दीज पैटर्न्स, थोड़े थोड़े पैटर्न्स को नेक्स्ट वीक तक अभी आप इन पैटर्न्स को फॉलो कीजिए, इनके बारे में और पढ़ाई कीजिए, और थोड़ा समझने की बैक टेस्टिंग कीजिए, रिसर्च कीजिए, स्टॉकेज ऐप में जाके देखिए कहाँ पे राइट हुआ, कहाँ पे रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो अपना रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या जस्ट सिंपल बेसिक नॉलेज दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली योर रिसर्च इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू विल बी इन चार्टिंग one can fix the condition for getting the stock on daily basis that they to subscribers. Charting is a different software. वो आपको चार्टिंग से कांटेक्ट करना होगा, व्हाट चार्टिंग इज प्रोवाइडिंग आई डोंट नो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड बीइंग अ good participants and being very cooperative. Hope you have enjoyed the session. I've learned something from this session. Okay, so see you all next week. Okay, hope you all have a very good profitable week ahead. And pujas is coming Bengal. You know, in Bengal, West Bengal, Durga Puja is celebrated, you know, very, you know, it's a very big festival. Durga Puja, we all celebrate with our hearts, okay? So we all wait for this Durga Puja. So wish you all a very good pujas, enjoy your puja, profitable, wish you all a good profitable week ahead, okay? So thank you everybody, thank you, I'm ending the session, okay? Thank you.